So hello everyone, welcome to the sequences lesson of sequences in real numbers. Today we will discuss sequences in R, also known as sequences in real number. So a sequence, it is a function whose domain is the set of natural numbers n and whose range is non-empty set S, which is subset of R, or we can say range is real numbers. So sequence basically whose range is a subset of real number R is called a real sequence or a sequence of real numbers. So whose domain is set of natural numbers and a range is a subset of R. So this is sequence in R. Here we will discuss or we will study only real sequences or sequences in R, or generally we will speak as sequence or sequences. So if S is a sequence, then the image Sn or this one Sn for n belongs to n natural numbers. So this is denoted by this one. These are some notations we will denote the sequence. So here we have some notations Sn or Sn और Fn. तो सीक्वेंस S और F, अगर हमारे पास जो भी नोटेशंस दिया हुआ है हम उसको अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में लेंगे. Xn भी हो सकता है, Fn भी हो सकता है, An भी हो सकता है. सो दीज आर द सीक्वेंसेस, सम नोटेशंस इन दिस टाइप. Fn और Fn इन मिडल ब्रैकेट और Fn n इक्वल्स टू 1 to infinity और Fn n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और F1 F2 Fn एंड सो ऑन. सो सीक्वेंस यहाँ पर जो हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है, domain of all sequences is natural number. So sequence is completely determined by Sn or Fn for all n belongs to natural numbers is known. So these are the basics about the sequences. And now we will consider here range of a sequence. So the set of all distinct terms of a sequence is called its range. जो इसके डिफरेंट टर्म्स होंगे उनका जो सेट बनेगा, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स, so that is the range of the sequence. In the sequence Fn, because n this is a natural numbers, domain is natural number, or we can say in the sequence this Fn, n belongs to n. Domain is infinite set. So the numbers of terms of a sequence and a real sequence is always infinite, because हमारा जो डोमेन है यहाँ पर infinite contains infinite elements. So इसके जो टर्म्स होंगे वो सीक्वेंस में इस तरह से गोज अप टू इनफाइनाइट, बट इसका रेंज ऑफ ए सीक्वेंस में बी फाइनाइट. रेंज इसकी फाइनाइट आ सकती है. इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे.
तो वो क्या है उनको भी आगे देखेंगे। सो यहाँ पर एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस में जिसमें एक ही टर्म हर जगह जा रही हो, जैसे यहाँ एक सीक्वेंस है XN E और 1 1 1 और C. So we can see this is a constant sequence, or we can write AA as singleton set. So this is constant sequence. So we have here some notations, some definitions of sequences in real numbers. Now we will take some examples. The sequence 1 4 9 16 and many more, or we can see this is the sequence of n square, n belongs to n, or simply we can write this one as n square or n square. Similarly, we can take another example, sequence 1 upon n और sequence 1 upon n. अगर इस तरह से नोटेशन है और इस तरह का अगर नोटेशन है तो इनका मतलब होगा सीक्वेंस. सो नेक्स्ट एग्जांपल अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पर सीक्वेंस -1 to the power n, and we can write. So upon expanding this one, इनको एक्सपेंड, इसका एक्सपेंशन ये होगा, इसका भी एक्सपेंशन कर सकते हैं 1/1, 1/2, 1/3 and so this is a -1 and 1 and -1 and 1. इस तरह से इसका एक सीक्वेंस बनता जाएगा. तो इसका जो रेंज आएगा, जो रेंज सेट इसका जो होगा -1 and 1, और इसको हम जो रेंज सेट होगा इसको 1, -1 यहाँ इस तरह से लिखेंगे पॉजिटिव. इसका भी जो रेंज सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, और वो 1/2 अप टू यहाँ 1/n, एंड दिस इज इनफाइनाइट सेट. 1/n के लिए जो रेंज सेट होगा इनफाइनाइट सेट होगा. तो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस may be finite or may be infinite. So these are some other examples or general examples of sequences. A sequence may be defined with the help of recursion formula. Now a sequence may be defined with the help of recursion formula. Recursion formula, suppose f1 is given here 1, f2 is given 2, and fn plus 2 equals to f of n plus 1 plus 3 fn for all n greater than equals to 1. This is condition given. Then find the sequence with the help of this recursion formula. So on simply putting n equals to 1, 2 up to so on in this equation, and using this f1 equals to 1, f2 equals to 2. Now we want to obtain, because f1 is given, f2 is given, putting n equals to 1, therefore here we will obtain f3 equals to f
n plus 1, that is 1 plus 1, that is f2, plus 3 into f1. So it gives us f2, that is 2, plus 3 into f1, 1. So simplification gives us 5. Similarly, f4, by putting n equals to 2. So here we have f3 plus 3 f2 equals to, so this is f3 is 5 plus 3 into f2. What is the value of 2? So it gives us 11, and etc. Many more. So fn, this is a sequence, which will be 1 and then 2, second term, third term f3 5, fourth 11, and like that terms are there. So with infinite range, here we will obtain infinite range, तो इसका range भी यही होगा. So this is the sequence obtaining by this recursion formula. Now we will discuss equality of two sequences. Equality of two sequences. Two sequences fn and gn, two sequences fn and gn are said to be equal if fn equals to gn for all n belongs to set of natural number. इस तरह की दो सीक्वेंस इक्वल होंगी. अब सब सीक्वेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. सब सीक्वेंसेस, so let fn be a sequence, and this is a sequence, and if we can write in this way also, in this way. So n1, n2, nk be strictly increasing sequence of positive integers. That means I greater than j implies that ni greater than nj. जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल की 2 ग्रेटर देन 1, तो n2 ग्रेटर देन n1, इसका मतलब ये है ni ग्रेटर देन nj. 2 अगर i को हम i ग्रेटर देन j, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझ सकते हैं 2 ग्रेटर देन 1 तो n2 ग्रेटर देन 1 एंड एटसेट्रा. Therefore the sequence fn1 comma fn2 and fn sub k and many more is called a subsequence of sequence fn. इसके लिए एग्जाम्पल से समझ सकते हैं सीक्वेंस. So if we consider sequence of primes 2, 3, 5, 7, this is sequence of primes, and this is the subsequence is a subsequence of natural number.
यानी जो हमारी सीक्वेंस नेचुरल नंबर की होगी 1 2 3, और अगर हमारे पास ये प्राइम की सीक्वेंस है तो ये जो सीक्वेंस है इसकी सीक्वेंस का, इस नेचुरल नंबर की सीक्वेंस का, एन की सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा. सो दिस इज द वे फाइंडिंग द सीक्वेंस, सब सीक्वेंस and some many more. Now we will discuss about bounded and unbounded sequences. Bounded and unbounded sequences. अब हमने इससे पहले सेट में भी डिस्कस किया हुआ है, कुछ वीडियोस हमारे सेट में हैं. इस सेट कब बाउंडेड होगा? इफ़ इट हैज़ बोथ अपर एंड लोअर बाउंड्स. इस सेट ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड इफ इट कंटेन्ड इन ए फाइनाइट इंटरवल. नाउ सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज विच इज ए सेट इज बाउंडेड. सीक्वेंस जब भी बाउंडेड होगी इफ इट्स रेंज, जो कि इसकी रेंज एक सेट होता है, वो भी बाउंडेड होगा तो ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी. अब बाउंडेड एबव में हम डिस्कस कर लेते हैं. बाउंडेड एबव कब होगा सीक्वेंस? बाउंडेड एबव सीक्वेंस, जैसा कि इसके नाम से ही है, एबव, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, जैसा कि इसके नाम से ही. इस सीक्वेंस, अगर हम एक सीक्वेंस यहाँ पर इस तरह से कंसीडर करते हैं, ये बाउंडेड एबव होगी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर. अगर हम वहाँ पर एक रियल नंबर गिवन सच दैट देयर एग्जिस्ट रियल नंबर गिवन such that fn is less than equals to k1 for all n belongs to this natural number, and k1 is called upper bound of the sequence. इसका मतलब बाउंडेड सीक्वेंस के लिए इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड above, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ the range of the sequence is bounded above. इसी तरह से बाउंडेड बिलो के लिए, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, अगर हमारे पास सीक्वेंस fn है, अगर हमारे पास सीक्वेंस fn है, fn लें या sn लें या an लें, सो ये बाउंडेड बिलो कब होगी? अगर इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k2, अगर यहाँ रियल नंबर k2 ले लें, एंड सच दैट fn, f sub n greater than k2 for all n belongs to this natural number. सो यहाँ पर ये k2 होगा, दिस इज द लोअर बाउंड. इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, इफ द रेंज ऑफ the sequence is bounded below. रेंज एक सेट होगा, उसमें छोटा से छोटा एलिमेंट होगा, जहाँ से शुरू करते हैं वो बाउंडेड बिलो होगा, तो सीक्वेंस का जो उसको कहेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. अब बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव. नाउ what is the bounded sequence? Bounded sequence. So a sequence
is known as bounded if it is bounded above as well as bounded below. जिसमें दोनों बाउंड अवेलेबल हों उसको बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। और इसको कह सकते हैं अ सीक्वेंस एफ एन। अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है एफ एन, इसको ऐसे लिख लिया, ये इज अगर हमारी सीक्वेंस एफ एन बाउंडेड है, इसको हमारे पास इफ देयर एग्जिस्ट two real numbers k1 and k2 such that k1 is less than fn is less than k2 for all n belongs to नेचुरल नंबर। लोअर बाउंड भी होना चाहिए और अपर बाउंड भी जिस सीक्वेंस में, उसको कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। इफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड above as well as bounded below, that sequence is known as bounded sequence। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं if the range of the sequence is bounded, if the range of the sequence is bounded। बाउंडेड का मतलब उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं और अ सीक्वेंस एफ एन इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k ग्रेटर देन 0 सच दैट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एफ एन लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर। नहीं, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी एफ एन लेस देन लाइज बिटवीन माइनस के एंड के, सो यहाँ पर भी इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली बाउंडेड के लिए, ये वाली यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए सीक्वेंस बी बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंडेड एबव हो। सो ए सीक्वेंस विच इज़ नॉट बाउंडेड, मतलब जिसमें जो बाउंड नहीं हो या बाउंडेड नहीं हो, उसको बोलेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो ये होती है बाउंडेड और अनबाउंडेड के लिए। अब थोड़ा और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। लीस्ट अपर बाउंड LUB and GLB. So this is the least upper bound. The least number Cm. The least number Cm, we can see this number as m if it exists of the set of upper bounds of the sequence Fn. Then least upper bound, also known as supremum or sup of sequence, supremum of sequence Fn, इस सीक्वेंस का Fn, supremum of sequence Fn। इसी तरह से GLB, that is greatest lower bound, greatest lower bound, also known as infimum. This is infimum, shortly this is INF dot, SUP dot, supremum, INF dot infimum of sequence Fn, which is the greatest number इस सीक्वेंस Fn के लिए, which is the greatest number m होगा। सो यहाँ पर कह सकते हैं
These are range of the bounded sequence. Least upper bound supremum and infimum is the greatest lower bound. ये रेंज होगी. यहाँ पर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं. अगर हमारे पास 2 to the power n सीक्वेंस है और इसको हम फॉर्मेशन करते हैं, सो 2 to the power 1 दैट इज 2, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब एंड मेनी मोर. सो इसका लोअर बाउंड is 2. Lower bound is 2 and it has no upper bound. So we can say this is bounded below but not bounded above. So यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं 2 to the power n greater than equals to 2 for all n belongs to n. यानी 2 से बड़ी तो आ रही है ना यहाँ पर. इसी तरह से एग्जाम्पल अगर दूसरे की बात कर लें, सो अगर हम सीक्वेंस यहाँ पर कंसीडर करते हैं n अपॉन n प्लस 1 और इसको हम एक्सपेंड करें n पुटिंग इक्वल टू 1 2, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होता है, सो 1. सो हियर इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 एंड 1 दैट इज़ 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 एंड दैट इज़ 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 एंड मैनी मोर. तो यहाँ पर जो हम इससे बढ़ते चले जाएंगे एटलीस्ट 3/4 एंड 4/5 एंड लास्टली हम जब इसका जो अपर बाउंड आएगा, सो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर दिस इक्वल्स टू 1/2 लेस देन इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1 and which is less than overall 1 for all n belongs to n. So इसका लोअर बाउंड हाफ हो गया, अपर बाउंड इसका 1 होगा. तो इस सीक्वेंस को कह सकते हैं बाउंडेड सीक्वेंस. इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल की बात कर लें कि बाउंडेड है या नहीं है, सो सीक्वेंस S अगर fn लेते हैं हम fn और इसमें जो हमारा fn दे रखा है 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो n इज द नेचुरल नंबर. ये इसके बारे में चेक कर लेते हैं ये क्या होगा. सो इसकी रेंज जब निकालेंगे तो सीक्वेंस यहाँ से बनेगा 1, यहाँ से सीक्वेंस बनेगा 1 प्लस माइनस 1 कॉमा 1 प्लस 1 1 प्लस माइनस 1 एंड मैनी मोर. इस तरह की टर्म आती चली जाएगी. सो यहाँ पर आने वाला है सीक्वेंस बन रही है 0 2 0 2. तो इसका जो रेंज सेट बनेगा, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस 0 to 0 आएगा, 0 and 2, this is the range set and this is finite set. So ये हो जाएगा बाउंडेड सीक्वेंस. फाइनाइट सेट यानी फाइनाइट सेट हुआ है जिसमें दोनों ही बाउंड अवेलेबल है, लोअर बाउंड अपर बाउंड. सो ये फाइनाइट सेट होगा. इसलिए ये सीक्वेंस जिसका nth टर्म ये है, इसके लिए ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी. इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किए कुछ सीक्वेंस की पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स. बाउंडेड क्या होती है, सुप्रीमम कैसे ही फाइंड आउट करते हैं, क्या है बेसिक्स. अभी इसके बेसिक्स के ऊपर कुछ और काम बचा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे. ये सीक्वेंस का कुछ बेसिक्स था. अगर इस बेसिक्स में कहीं कुछ और भी प्रॉब्लम है और कुछ मॉडिफिकेशन हो, some modification in the basics of sequences in real numbers or sequences in R, or if you want to some modify or want to give some suggestions or provide some suggestions, then you may comment so that we will improve
the quality of this or of these videos. उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस का कुछ बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट होगा वीडियो वो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की रिगार्डिंग करेंगे। इसमें अपना टाइम लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।